took the lecture, at that time he had talked about a formula that was 1 minus nth root of scrap value divided by cost, this whole multiplied by 100. This is the derived formula of what you just talked about. तुमने जो भी कहा A is equal to P multiplied by बराबर ना 1 माइनस आई टू दी पावर n, यही है ना तुम्हारा फॉर्मूला. इसी को डिराइव करके ये फॉर्मूला बनाया गया. 1 माइनस nth रूट, एक्चुअली रिवर्स वे से कहा जाए, जो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ना ये वाला, इसको रिफाइन करके ये फॉर्मूला बनाया गया मैथ्स में सिंप्लीफाई करने के लिए. अब मैंने क्या किया, 1 माइनस 8th रूट ऑफ scrap value, n is 8, right? Scrap value is 1 lakh, divide by 10 lakh, this whole multiplied by 100. अब आपसे कहा गया अगर रूट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो रूट का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, रूट 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 रूट, करेक्ट, -1 डिवाइड बाय n प्लस 1 into equal to. This is the method that has been told to you, which is absolutely correct. I'm not negating that fact. But the point is what, आपके कैलकुलेटर में एक इनबिल्ट फंक्शन है, वो इनबिल्ट फंक्शन कुछ ऐसा है. अगर हमें स्क्वायर करना है किसी चीज को तो स्क्वायर मीन्स व्हाट, टू द पावर 1 और नॉट. अगर if we have to keep 2 as a single number, so 2 to the power 1 is equal to 2 or not. अगर हमें इसका स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर क्या 4, 2 का क्यूब क्या 8. In your calculator there is an inbuilt function. If you want to find out the square root of something, सिर्फ स्क्वायर रूट, तो प्रेस द रूट बटन ओनली वंस, बिकॉज 2 का पावर उस समय पे 1 होता है या नहीं. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रूट ऑफ 4, यू प्रेस द रूट बटन ओनली 2 times and you get the answer directly. If you want the root of 8, press the root button 3 times. 2 to the power 4 is 16. So if you want to have the root of 16, press the root button only for 4 times and you directly get the root का value, right? ये कब, सिर्फ जब भी आपको 2 का अगर रूट, if you want to find out the root of 2, root of 4, root of 8, root of 16, तो इसके अलावा अगर आपको कोई और रूट फाइंड करना है तो उसके लिए आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा. This is exclusively and specifically only for those numbers which are in geometric progression of 2. 2, 4, 8, 16 is the geometric progression. कि arithmetic progression होता है, geometric progression. So as the number is in geometric progression, you can press the root button only for the number of times for which it is the power of 2. 2 to the power 1 was equal to 2 or not. तो इसीलिए मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो रूट का बटन सिर्फ एक बार दबाना पड़ेगा. अगर 4 का रूट फाइंड करना है तो प्रेस द रूट बटन 2 times. अगर 8 का रूट फाइंड करना है तो प्रेस द रूट बटन 3 times. यू कैन डायरेक्टली डू इट, राइट. पर अगर यही n is coming as 3, 5, 6, 9, 100, in that case you cannot follow this method what we just talked about. In that case you will be required to follow the normal method. What is that normal method? 12 times root minus 1 divide by n plus 1 multiply equal to for 12 times. This is for finding the value of root. Is that point right? अब वापस से ट्राई करते हैं अपन. Do it. 1 lakh divide 10 lakh equal to
You got 0.1, root. You got 0.7499, correct? So it will be 1 minus 0.7499 multiplied by 100 or not? That is equal to 25.01%. Is it point right? पर ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग, हमारी नॉर्मल मेथड से क्रॉस चेक करते हैं. डू इट. 0.1, सॉरी 0.1 नहीं, हाँ बराबर 0.1 रूट फॉर 12 टाइम्स. रूट 12 बार रूट है, 12 बार रूट लिए, -1 डिवाइड बाय 8 +1 इक्वल टू, नो सॉरी, इनटू इक्वल टू फॉर 12 टाइम्स. Into equal to. Did you do that? Did you get the same 0.7499? वही आंसर चाहिए था ना बस. तो आप कोई सी भी मेथड से करो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. पर मैंने शॉर्टकट क्यों बताया? जहां कहीं भी 2, 4, 8, 16 का रूट फाइंड करना है तो आपको ये वाली मेथड फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है. Why am I talking about this is from the perspective of accounts, not from the perspective of maths. क्योंकि मैथ्स में हो सकता है आपको 100 भी n दे दिया जाए, अकाउंट्स में 100 n कभी नहीं आएगा. अकाउंट्स में n will be limited and that's why you need to learn it from the perspective of accounting as well. Same concept है. वहां इजहार का तरीका अलग था, यहां इजहार का तरीका अलग है, पर इजहार वही हो रहा है. क्योंकि किसी ने कहा है कि इजहार ऐसा करो कि इकरार ही हो, क्योंकि अगर इनकार हो गया तो दिक्कत हो सकती है. वैसा समझा? हाँ. यस, लेट मी कम बैक. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर कहां से कहां लेके चले जाते हो आप लोग, फिर वापस लेके आ जाते हो धड़ाम से. तो हम लोग ऐसी फीलिंग में थे, आज तो घर पे जाके ऐसे ही देखो शॉर्टकट आता है मेरे को. अच्छा चलो 1 मिनट, कैलकुलेटर की बात निकली, अभी थोड़ा सा समय है मेरे पास, तो कैलकुलेटर को कंटिन्यू करते हैं. राइट, कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस को आसान कैसे बनाएं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. राइट, नॉर्मली आम जिंदगी में अगर हमें किसी ने कहा कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, कुछ ऐसे 200 इंटू 960, 165 इंटू 420, 988 इंटू 411, 211 इंटू 411, ये अलग अलग नंबर्स हैं जिनके हमें इंडिविजुअल आंसर्स भी चाहिए और इनका टोटल भी चाहिए. इनके हमें इंडिविजुअल आंसर्स भी चाहिए और टोटल भी चाहिए. तो आम जिंदगी में हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर देखूं, थैंक यू. आम जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, 200 इंटू 960 इक्वल टू 1,92,000 बराबर. देन 165 इंटू 420, 69,300 करेक्ट. 988 इंटू 411 इक्वल टू 4,06,068 बराबर. देन 211 इंटू 411, 86,721 बराबर. और फिर हम लोग क्या करते हैं, 1,92,000 प्लस 69,300 प्लस 4,06,068 प्लस 86,721 इक्वल टू दैट इज 7,54,089 बराबर. ऐसी कुछ तो करते हैं ना हम लोग, पक्का? आर यू ऑल श्योर? चलो डू इट.
टेक ऑन योर कैलकुलेटर्स। स्टेप 0, क्लियर मेमोरी। वो ऑन का बटन 2 बार प्रेस कर दो। कर दिया? अच्छा, कितने लोगों के कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जिसपे जीटी नहीं है? जीटी नहीं है। जीटी ये बटन नहीं है, ऐसे कितने लोगों के कैलकुलेटर्स हैं? ओके, इन सब लोगों के लिए हाल फिलहाल की जानकारी काम की नहीं है, राइट? हाल फिलहाल जो कह रहा हूं वो आपको काम नहीं आएगा, सिर्फ हाल फिलहाल। आपके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ऑलराइट, किया आपने? ऑन बटन दबाया 2 बार। डू इट। 200 इंटू 960 इक्वल टू 200 इंटू 960 इक्वल टू किया विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग एल्स। 165 इंटू 420 इक्वल टू 165 into 420 equal to, I hope you are getting the same answers. Without pressing anything further, 988 into 411 equal to 988 into 411 equal to, do you do that? 211 into 411 equal to, kiya? Are you all sure? Now without pressing anything further, just press GT. Did you get the answer? GT is the function of grand total. Whatever calculations without clearing the previous memory you have done, those all keep getting accumulated in your calculator, and ultimately that can be retrieved in the form of GT as a function or grand total as a function. Is it point right? क्लियर है? अब अगर जीटी फंक्शन यूज नहीं करना है, हमें पता नहीं कि पिछले वाले क्या स्टोरेजेस हैं, सो इन दैट केस द अल्टरनेट इज मेमोरी फंक्शन, wherein m plus stands for memory add, m minus stands for memory subtract, mrc stands for memory recall and memory clear. अगर आप मेमोरी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एमआरसी बटन को एक बार प्रेस करते हो तो वो मेमोरी रिकॉल करके देता है, और अगर आप वही एमआरसी बटन को सीक्वेंशियली 2 बार प्रेस करते हो तो मेमोरी रिकॉल करने के बाद में पिछली वाली मेमोरी क्लियर कर देता है, राइट? टेक इट ऑन नाउ एवरीवन। 200 इंटू 960 इक्वल टू एम प्लस 200 into 960 equal to m plus 165 into 420 equal to m plus 988 into 411 equal to m plus 211 into 411 equal to m plus. Do you do that? Now without pressing anything further, directly MRC. Did you get it? बराबर है? पक्का? नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट जितनों को पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज शायद हम पहली बार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेमोरी फंक्शन का उपयोग आखिर है क्या. How many of you understood it for the first time? Memory? No, don't tell me this. Don't tell me this, please. तुमको आज तक पता ही नहीं था मेमोरी फंक्शन क्यों यूज करते हैं? सर 15 दिन पहले तो कैलकुलेटर यूज करना चालू किया है. मेमोरी फंक्शन तो बहुत दूर की बात है ना. अब तक तो हमको समझ आता था कैलकुलेटर से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए होता है. कैलकुलेटर इज अ बून. इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक टूल अवेलेबल विथ यू. ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं, आगे चल के आएंगे और भी. एक और सिर्फ आज के लिए. Suppose we have to do the calculation as 965 into 220, 820 into 220, 951 into 220 and 611 into 220. Again, individual भी चाहिए और total भी चाहिए. Do it now.
डन। What is the final answer? 7 lakh बराबर। ये टोटल है, इंडिविजुअल अमाउंट जो कुछ भी आई होगी। आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा किया 960। अच्छा भाई साहब ने तो सबसे खतरनाक दिमाग लगाया। आई सेड वी वांटेड द इंडिविजुअल अमाउंट्स आल्सो, बोला था ना मैंने। भाई साहब ने खतरनाक दिमाग, सारे 965 प्लस 820 प्लस 951 प्लस 611 इंटू 220। ऑब्वियसली उससे आंसर करेक्ट आता है, कोई गलत नहीं है। कैलकुलेटर तो थोड़ा सा वो बटन हार्ड है थोड़े से, हाँ लग ही रहा था मेरे को। What he has done is 965, 820, 951, 611 into 220, that is 7,36,340 is the answer what he has got. और आप लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमको इंडिविजुअल अमाउंट्स भी चाहिए थे, तो आप लोगों ने कुछ ऐसे किया 965 इंटू 220 एम प्लस इक्वल टू एम प्लस किया ना आपने, 2,12,300 पहला आंसर। देन व्हाट यू डिड 820 इंटू 220 एम प्लस बराबर 1,80,400 is the answer. Then what you did is 951 into 220 equal to m plus, that is 2,09,220 is the answer that you had got. Then you did 611 into 220 m plus, equal to m plus, 1,34,420 is the answer that you got. And then you did MRC to get the answer of 7,36,340 बराबर। ऐसे किया ना, हाँ ये आम जिंदगी थी, इसको मिनटोस बनाते हैं। Just check it out. 220 क्योंकि कॉमन नंबर है इसलिए आई एम टेकिंग फर्स्ट द नंबर ऑफ 220 मल्टीप्लाई 965 इक्वल टू, सर यही तो हम कर रहे थे, m प्लस। यू डू दैट विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग फर्दर, डायरेक्टली कंसिडर 820 820 equal to, did you get the same answer जो पहले उसके आगे लिखा था, m plus 951 equal to m plus 611 equal to m plus MRC। Shall I repeat it? I'll again take it. ठीक है। स्टेप 1, सॉरी स्टेप 0, मेमोरी क्लियर। कितने सारे लोगों का मेमोरी में आंसर गलत हो गया क्योंकि मेमोरी में पहले से स्टोरेज था। Whenever you are using the memory function of the calculator, you should first erase the previous memory of calculator। तुम तो गजनी पहले से हो। So step 0, on button for 2 times या MRC button for 2 times to clear the memory। हो गया। Again 220 into 965 equal to 220 into 965 equal to m plus, यहां तक बराबर है, हाँ। Without pressing anything further, I said directly consider the next number. What is that next number? 820 equal to m plus 951 equal to m plus 611 equal to m plus MRC। फर्क क्या हुआ पिछले वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में? पिछले वाले एग्जाम्पल में सारे नंबर वेरिएशन में थे, बट इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब जगह पे कॉमन है नहीं। So take that common number first, press multiply and then start pressing the numbers which you want to multiply। आपके कैलकुलेटर में ये इनबिल्ट फंक्शन है, जब तक आप अगला इक्वेशन ऐड नहीं करते हो तो मल्टीप्लिकेशन में पिछला वाला इक्वेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो जब आपने 220 इनटू किया उसके बाद जो जो नंबर आप डालते जाओगे उससे वो मल्टीप्लाई करते जाएगा। That is what is the inbuilt function of your calculator। तो जहां कहीं भी कॉमन नंबर मल्टीप्लिकेशन आए तो कंसीडर द कॉमन नंबर फर्स्ट
and then the varying number, the varying numbers. And by that way, you'll keep getting the answers. Is it point right? और भी है, समय के साथ आएगी, अभी सारी नहीं बताऊंगा. Right? So that's it for the day. We'll be meeting tomorrow again with the consideration of expenses. Thank you very much.